Hello guys, welcome to Non-Tech Wala. So today we have to cover additional data management tool. In this, we will cover remove duplicate, text to column, fixed width, delimited, and where would it be. And trust me guys, like this tool is very useful in data analytics and day-to-day Excel operations. So let's start. So first it will be like remove duplicates. So in this data, we have to know that like basic knowledge of the data, like customer ID, order ID, names, and the like agent handle. So the basically the certain name of the person like we can see in this sheet like Gopi and Gopi, LB and LB. So they are like repeated numbers of the names also. So we have like general knowledge of the data, like the name of the person may be like the same and repeated in like many times. So what we have to focus on the like the customer ID and the order ID because it will be the unique. It can't be same as the like the upper one. This is like a unique key for the every order for and the like every person. So we have to remove in this. So just go to the data bar and select on remove duplicates. Okay. So there is a certain box is open and just click on unselect and click on the like first column like customer ID. Click OK. So then we can find like 942 duplicates value to be find in the data. So we just click on OK. And then we have to check on the like order ID also. So just go to the like remove duplicates, unselect, and then order ID and click OK. So there we can see like there is a 8 duplicate value will be the find in this data sheet. So overall, we have totally removed the all duplicates. If we have to check the like cross verification, so just like Control A and then remove duplicates, select all because all already selected, and then click OK. So there is no duplicate values will be found. So like if this data will be the correct. Okay. So it's the like total overall like the basic knowledge of the like how to remove the duplicate from the data sheets. So guys, moving forward, we have to cover text to column. Basic mean text to column is splitting the information into the columns. कुछ नहीं करना इसमें बहुत सिंपल है सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन होती है कॉलम्स की हमको सिंपली जो रेफरेंस होते हैं डे मंथ और ईयर इनके इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्प्लिट करना रहता है. So basically, we can see like there is a order date. In order date, हम देख सकते हैं there is a like fixed setup. Like there is a like day, then month, and then year. जो पूरा जो डेटा है एक फॉर्मेट में है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है. सबको पता है कि हम इसको किस में मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक डे मंथ एंड ईयर. Just go to the data we already have, then text to column. So just first of click, then text to column. There is a two types of options like delimited and fixed width. First of all, we go with fixed width. Then later I will explain you delimited. Okay, so just go to the next. So there is a like the open bar like previous. What we have to select in this. So we have to just click on the like arrow. Then we have to divide in behalf of, and then first and then second. Then click on next. And then there is a file of destination. So just click on destination and then click on outside like day and then which select the array button. Then we have to represent our data like whatever the outcome will come, select the range automatically. Okay. And then click on finished. So we can see कि जो हमने text to column किया है उसमें कुछ है कि like 19, 11, 20 डेट सही है 9 भी सही है एंड देन ईयर भी सही है बट इन द सेंस कि like जो हम टैग फंक्शन देख रहे हैं ये आ रहा है तो ये इसका पहला ड्रॉबैक होता है टेक्स्ट टू कॉलम में जो भी हम डेटा सेलेक्ट करेंगे इन द वे ऑफ फिक्स्ड विथ वो उसके रेफरेंस में आएगा. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. एक आसान एग्जांपल दिखाता हूँ शायद से ये आपको समझ में आए. फोन नंबर है. अब इन द सेंस ये फोन नंबर है मुझे इसको रेफरेंस में सिर्फ मुझे एक सेपरेटेड फोन नंबर निकालना है यानी कि जो कंट्री कोड होता है उसको सेपरेट करना है. तो सिंपल मैं इसको इस ये सिलेक्ट करूंगा एंड देन टेक्स्ट टू कॉलम एंड देन फिक्स्ड विथ एंड देन क्लिक कि मुझे किस रेफरेंस में कहाँ से कहाँ तक डेटा को सेपरेट करना है. तो मैंने ये कर लिया फिक्स्ड विथ में एंड देन नेक्स्ट किया एंड देन मेरा डेस्टिनेशन पे क्लिक करके मुझे कहाँ उसको रिप्रेजेंट करना है ये एंड देन फिनिश. सो आई कैन सी लाइक जो हमारा
कंट्री कोड है 91, वो अलग हो चुका है, और जो हमें चाहिए मोबाइल नंबर वो यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये डेलिमिटेड केस में देखेंगे, बहुत आसान है। हमको क्या करना है, जो भी ये डेटा है उसके रेफरेंस में हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम को एक तरीके से सब मर्ज करना है, या मतलब इन द सेंस की, सॉरी मर्ज नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो just click on this, go to text to column, and then delimit it. So next, so in delimited we have seen like tab, semicolon, comma, space and other. अगर आप जो करते हो यूज लाइक टैब हुआ, सेमीकोलन हुआ, कॉमा हुआ, स्पेस बार, सो हम देख सकते हैं हमारे डेटा में स्पेस बार यूज है। अगर हम स्पेस बार में यूज करें तो उसने ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा था लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसके ब्याह पे जो हमारा डेटा था उसको स्प्लिट कर दिया। और अगर सोचो कि जो भी हम कर रहे हैं पर वो डेटा एक फॉर्मेट में है, तो हम उसको स्पेस ना करके सिंपल अदर में जाके वो चीज अगर कर देंगे, जस्ट लाइक वेदर स्पेस करूँ, तो उसने अपने आप ही डेटा उस यहाँ पे भी स्पेस कर दिया। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो सिलेक्ट ऑन नेक्स्ट, डेस्टिनेशन को क्लिक किया, हाँ मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये किया, एंड देन फिनिश। तो इसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम के नाम पे जो था वो पूरा डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ moving forward, there is another example of text to column in delimited format. So ये हमारे पास ऑर्डर डेट है। हम देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है मैंने पहले फिक्स्ड विथ से किया था, अब मैं इसे डेलिमिटेड से सॉल्व करूंगा। सो जस्ट कुछ नहीं, इसको ऐसे ऐरे से सिलेक्ट करो and then go to the data and then text to column. Now we have to select delimited, then go to the next. Now we have to select on other. In other we have to click on tab. Now we can see whatever the data we have select, we can check here. It is automatically present in, and it is automatically separated by the tab. And when we represent on the like the specified source, it will represent like this. So just go to the next, simple click on destination, where we have to like represent this data, select the whole array and then finished. सिंपल था। फिक्स्ड विथ से अच्छा था डेलिमिटेड, बट डेलिमिटेड में इन द सेंस क्या है कि जब भी हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे हमें अपना डेटा का फॉर्मेट प्री डिफाइंड पता होना चाहिए। ठीक, सिंपल है। देन मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट वेट, वेयर टू टेक्स्ट टू कॉलम फेल। सो बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है वो स्प्लिट करता है इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब समझो कि मेरे को उसमें से सिर्फ नंबर्स बाहर निकालने हैं। अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर भी लूँ और अगर टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊँ भी और अगर डेलिमिटेड भी कर दूं इन द सेंस, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है, तो मैं किस भी पे उसको मैं मतलब डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल फ्लैश बिल से करूं तो मैं इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो निकाल सकता हूं। अगर नहीं देखा फ्लैश बिल क्या होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, उसमें यही एग्जैक्ट एग्जांपल है, उसमें आप फ्लैश बिल यूज करना सीख जाओगे। बट अगर मैं इन द सेंस इसको अगर मैं टैब के फंक्शन पे करूँ, सेमीकोलन के फंक्शन में करूँ, कॉमा के फंक्शन पे करूँ, स्पेस के फंक्शन पे करूँ, तो इन द सेंस ये इस बेहाफ पे होगा, जो कि बहुत ही टिपिकल होता है। सो देयर इज एन एग्जांपल कि जहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम एक तरीके से फेल हो जाता है। ठीक है, एक और दिखाता हूँ कि समझो कि मैंने ये डेटा यहाँ से हटा दिया, लाइक क्लियर कंटेंट, और मुझे इन द बिहाफ ऑफ ईयर सिर्फ डे एंड मंथ चाहिए फ्रॉम दिस। सो अगर मैं इसमें करूँ टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन डेलिमिटेड, मेरा पहले से प्री डिफाइन लगा है, नेक्स्ट करूँ एंड देन डेस्टिनेशन करूँ और बोलूँ कि मुझे सिर्फ डे और मंथ निकाल के दो, और अगर फिनिश्ड करूँ तो मेरे को ये पॉपअप शो करेगा कि देयर इज एन एलईडी डेटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। इन द सेंस मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि मेरे पास पहले से कोई डेटा है बट इन द रेफरेंस मुझे सिर्फ डे और मंथ चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो टेक्स्ट टू कॉलम यूज फंक्शन करेगा तो जो भी उसने मतलब डिफरेंशिएट किया है इन द सेंस ऑफ डेलिमिटेड फिक्स्ड लेंथ के बेसिस पे, तो वो पूरा का पूरा डेटा लेगा, ना कि इन द बेसिस ऑफ टू कॉलम्स वी हैव टू चूज। सो इन द सेंस लास्ट कि ये उस डेटा को रिप्लेस करेगा एंड देन यहाँ पे उसको फिल कर देगा। तो ये भी एक तरीका उसका डाउनफॉल में ही आता है। सो ओवरऑल ये टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन था। In the next video, I will cover the next topic. So, thank you.